Ladies and gentlemen, on behalf of Captify Consulting Investor Relations team, I welcome you all to the Q1 FY27 post-earnings conference call of Mac Power CNC Machines Limited. Today on the call from the management we have with us Mr. Rupesh Mehta, Chairman and Managing Director, Mr. Vishal Mehta, Chief Financial Officer, Mr. Kishore Kikani, Company Secretary, and the management team. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to brief us about the business and performance highlights for the period ended June 2026, the growth plan and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to the management team. Thank you very much, Vinayji and Team Captify to arranging the very nice con call of Q1. Good afternoon, everyone. I am warmly welcome all of you to our Q1 FY27 post-result conference call. Thank you for taking time out of your busy schedule to join us. We truly value your continuous interest and support. The financial result and presentation have been uploaded on the company's website. I hope you have had a chance to review them. I will bring my walking you through the key highlight of our Q1 FY27 performance, followed by an update on our strategic initiative and growth outlook. After that, we will be happy to take your questions. We are pleased to state that Q1 FY27, the company delivered its highest ever performance across revenue, EBITDA and PAT for any Q1. Revenue stood at 95.24 crores, registered a YOY growth of 56.6%. EBITDA stood 15.43 crores, grown by 95% in YOY, and EBITDA margin of 16.20. PAT stood 9.58 crore, grown by 110% YOY with the PAT margin of 10.06%. Average machines realization around 20 lakh. Capex during the Q1 was 2.25 crore. Internal Capex has led to corresponding increase in appreciation. Robust order book and strong demand in pipeline. Pending order book of Q1 stands at 456 crore, reflecting 32% YOY growth. Nexa series contribution around 40% of the pending order book. Domestic bid submitted 739 crores. Tender bid under evaluation 304 crores. And domestic quotations is in pipeline for 1000 plus crore, 1043 crore. New product innovation. Recently, we have successfully developed and launched several new models in Q1 like DCM 2518 double column machines, LX 1000 and TOM 200 with Y-axis. Infrastructure expansion for future growth. In line with our aggressive growth strategy and sustained momentum in order flow, we have selected 13-acre 9+4 green zone of land on a 30 years long-term legally registered lease near our existing plant. The new facility will be enable debottlenecking, decongestion, backward integration and significant scaling of our operations to support our long-term growth ambitions. State-of-the-art assembly facility will be centrally air-conditioned shop floor on approximately 1.5 lakh to 2 lakh square feet. Targeted completions of this facility within 12 months. Estimated investment of this expansion is 50 crores. Benefit of this expansion from Viksit Gujarat
new industrial policy 2026 is including 25% capital subsidy plus 7% interest subsidy. Funding is expected through a prudent mix of internal accruals and debt. Focus on captive solar power to reduce the energy cost. We are also expanding our market presence, currently operating new 10 branches office and 8 technology center. Recently opened a new branches in Kolkata, upcoming branches in Nasik, upcoming technology center in Pune, Kolhapur, Mumbai western part. Expanding a sales and service networks, participating and spending the marketing budget by exhibitions, future guidance with the strong order book of 456 crore, almost YOY 32% grown by last year to this year, and expanding a high-end product portfolio and ongoing capex. We are confirm our delivering another year of robust growth and are looking at plus 30%. Now we are changing our last con call. We had committed 28 to 30% growth, but now look at the our raw material situation is in our hand, manpower is in our hand, and the huge order book. So we are slightly we are increasing our growth target by 30+% in this coming year. We remain a focus on a profitable growth, operational excellence, and long-term value create for our stakeholder. I would now like to open the floor for question. Then you once again thank you for your participation. Yeah, Vinayji, can you please open the new green zone areas layout? Sir, एक minute. I'm having an issue at my end, not able to open it. Just give me 1 minute. So in the meanwhile, we can take questions. Right. Yeah, 1 minute. We are just getting it started. These are the new 13-acre areas planned. Already the planning is completed, and we had given the agency work to the Technic Ahmedabad. They are the master for industrial projects, and maybe within a short time we'll start the construction work also. Thank you, Vinayji. We can start question. Thank you, sir. We'll now begin the question and answer session. All those who wish to ask a question, please use the option of raise hand. If you are unable to raise hand, please put your questions in the Q&A box. Also request everyone to limit 2 questions in the first round to allow everyone to ask questions. We'll take the first question from Agastya Dave. Please go ahead. Audible? Yes, Agastya. Rupesh, thank you very much for the opportunity and good performance, sir. Sir, but एक चीज I would like to point out, last year same quarter थोड़ा सा low base effect था, तो ये साल आपने मेकअप तो किया है सर उसके ऊपर, एंड आपने गाइडेंस भी ऊपर की है सर, लेकिन ये आप कितना कॉन्फिडेंस लेवल है सर आपको कि जो ऑर्डर बुक और जो बिड पाइपलाइन आपकी इतनी स्ट्रांग हुई है अभी, वो नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड 18 मंथ्स में ट्रांसलेट करेगी कंटिन्यूअसली बेटर रेवेन्यूज में सर? हाँ, ओवरऑल जो ये साल का अगस्त जी जो क्वार्टर रहेगा, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, वो ऑल टाइम हाई रहेगा पूरी मैक पावर की हिस्ट्री का. ऐसा हमारा मटेरियल का, मैन पावर का और ऑर्डर बुक का, तीनों का जो डेटा हमारे साथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और मैंने पहले भी बताया था अगस्त जी कि पहला क्वार्टर होता है वो बिजनेस का 15-20% होता है, क्योंकि मार्च में बैलेंस रेडी नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं आती है. पर ये क्वार्टर जो है वो एक्सेप्शनल रहा है,
तो वो ग्रोथ का स्टोरी दिखाता है। तो अभी भी हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन था 15-20%, फर्स्ट क्वार्टर वही रहा है, सेकंड क्वार्टर भी अच्छा अच्छा रहेगा, थर्ड क्वार्टर अच्छा 25%, 30% हम बोलते हैं, और लास्ट क्वार्टर में जो भी बचा है वो हो जाता है। तो ये एक कैपिटल गूड्स इंडस्ट्रीज का नेचर है। तो कोई एक्सेप्शनल केस में फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ नहीं आया है, वही है 15-20% वाला स्टोरी ही है। अभी ओके आगे का क्वार्टर रहेगा वो, जो ये इंडस्ट्रीज का पैटर्न है उस हिसाब से ही आएगा। क्वार्टर टू जी एंड क्वार्टर थ्री ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और जो भी जी बचता है क्वार्टर फोर होता है वो 30-35% होता है। तो जी विजिबिलिटी अभी भी हमारी वही है। और जो पैटर्न है ऑर्डर रिसीविंग का, वो डिलीवरी से ज्यादा ही आ रहा है डे बाय डे और मंथ बाय मंथ भी। तो मुझे ये लगता है कि जो जर्नी हम 2 साल से बता रहे हैं कि ऑल द क्वार्टर विल बी द हाईएस्ट रहेगा, वो जर्नी नेक्स्ट ईयर में भी और उसके बाद भी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। ग्रेट सर। सर थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि जो आपकी नई फैसिलिटी है उसमें आपने दो तीन चीजें लिखी हैं, उसका मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। एक आपने कहा 25% कैपिटल सब्सिडी, तो 50 करोड़ का आपका जो कैपेक्स है उसका 25% विल कम, या आपने नेट नंबर 50 करोड़ लिखा है? दूसरा सर, आपने 7% इंटरेस्ट सब्सिडी की है, ये सब सर बेनिफिट्स एक ही साल में आ जाएंगे या स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, और आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? और ये जो नई फैसिलिटी है सर, इसकी कैपेसिटी आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के बराबर ही है, राइट? तो आई मीन कंपेयर करना मुश्किल रहेगा बिकॉज मशीन आई गेस अलग अलग रहेंगी। तो अगर आप थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताए नए फैसिलिटी के, और विजिबिलिटी नई फैसिलिटी के लिए कितनी है सर? क्या आपको ऑलरेडी ऑर्डर्स आने लगे हैं नई फैसिलिटी के लिए जो आपको डिलीवर करना है? नहीं, फैसिलिटी को देख के अगस्त्य जी ऑर्डर नहीं आएंगे। ऑर्डर तो अपने रेगुलर प्रोडक्ट बास्केट में उसमें ही आएंगे। मैं आपको पहले सब्सिडीज का बताऊं तो यस, जो भी इसका सब्सिडी का जो कमिटी है उसमें भी मैं रहा हूं, और मैं सीएम और डेप्यूटी सीएम की मीटिंग में भी हाजिर रहा हूं। तो आई आई नो अबाउट दिस पॉलिसी, मैं बहुत अच्छी तरह से डीपली अंडरस्टैंड करता हूं। तो 25% है हम लोगों का कैटेगरी बी। हम लोग डेवलप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो 25%, अगर अनडेवलप है तो 35, तो हम एलिजिबल है 25% के लिए। उसमें लैंड पे सब्सिडी में नहीं मिलेगा, लेकिन लैंड हमने खरीदा नहीं है। तो अभी जो भी कैपेक्स करेंगे वहां पे, मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन है, वो पूरी अमाउंट पे हमें 25% मिलेगा, जो 5 साल में डिवाइड होगा। दूसरा जो मैं मिलेगा 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी, मेरी बैंक मुझे 8%, 8.25% के आसपास चार्ज करेगी। तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 साल तक या 7 साल तक जब तक लोन चलेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10%। तो वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये दो फैसिलिटीज मिलेगी। और नई जो फैसिलिटीज डेवलप होगी अगस्त्य जी, उसमें कोई नई प्रोडक्ट बास्केट तो नहीं आ रही है, यही प्रोडक्ट बास्केट है। हमारे पास ऑलमोस्ट 364 वेरिएंट है, और ये जो नई नई प्रोडक्ट्स लाना वो हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस रहती है। हर साल हम 3-4-5 नई प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो वहाँ की विजिबिलिटी में हमने यही तय किया है कि पहले हम लोग असेंबली को शिफ्ट करेंगे सेंट्रली, वर्ल्ड क्लास जो होती है असेंबली प्रैक्टिस, उस एरिया में शिफ्ट करेंगे। फिर हम लोग कैलकुलेट करके कुछ डी बोटलनेकिंग करेंगे, और फिर कैपेसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा सर, सर थैंक यू वेरी मच सर। मेरे कुछ और क्वेश्चन है बट आई गो बैक इन द क्यू सर, दो ही क्वेश्चन अलाउड है फर्स्ट टाइम। थैंक यू सर, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। Thank you. We'll take the next question from Sanjay Ladha. Please go ahead. Hi, sir. Is my voice audible? Yes, You Sanjay. are audible, Sanjay ji. Yeah. Yeah, hi, sir. Thank you. Congratulations on a very good set of numbers, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि करंटली अपना जो कैपेसिटी है दैट इज रफली 2500 यूनिट के आसपास, उसमें से क्या आप मुझे ये बता सकते हैं सर कि कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है अभी, एंड जो अपने ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपवर्ड्स ऑफ 30% का जो अपना गाइडेंस है? जैसा कि सर मैं प्रेजेंटेशन में आपने जो हाईलाइट किया है उसमें द फर्स्ट फेज इज 2000 एडिशन कैपेसिटी, तो वो 2000 एडिशन
कब तक आ जाएगी, क्योंकि आपने एक साल में 5000 बोला है कि वो 5000 कैपेसिटी लाइव हो जाएगी एक साल में। तो तो 2000 कब तक आ जाएगी, और अभी ये वो जो 2500 है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है? जो आप 2000 का जो बात कर रहे हैं वो हमारा जो 60 एकड़ का डिफेंस पॉलिसी का लैंड था उस टाइम का हमारा ये 2000 हम ऐड करेंगे वाला बात था संजय जी। अभी ओके। हम लोग के पास 60 एकड़ गवर्नमेंट लैंड वाला नहीं आया है। वो मेरे ओके। ख्याल से मेरे पास जो न्यूज़ है वहां तक पॉलिसीज जो है वो रेडी करके कमिटी से और इंडस्ट्रियल कमिश्नर से अभी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी है और मेरे ख्याल से एनी टाइम दे आर रिलीजिंग द न्यू पॉलिसी। तो ये 2000 वाली जो बात है वो हमारी फेज वाइज जो 10,000 तक लाना है वो लैंड अभी तक हमारे पास नहीं आई है। पर हमारा थोड़ा डिलेड हुआ है गवर्नमेंट की वजह से। तो हमने ये 13 एकड़ वाला बीच में आइडिया किया है जहाँ पे अभी कैपेसिटी की बात करेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम लोग ये साल 2500 की कैपेसिटी में हम लोग 90+% का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। और तो जो सर वो लास्ट ईयर नंबर क्या था, अगर आप वो बता पाएंगे तो, मतलब क्योंकि मेरे को ये जानना था कि अपनी ग्रोथ जो लास्ट ईयर जो अपने 30% बोल रहे हैं, वो 30% ग्रोथ में लास्ट ईयर कितना था, और ये साल तो आप 90% बोल रहे हो, मतलब वो लास्ट ईयर नंबर थोड़ा कम था क्या? क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमारा रेवेन्यू था वो 333 का था ओके। और एवरेज प्राइस जो है 20 लाख का आता है हमारा। और ये साल हम्म। भी शायद 20,50,000 या 20,75,000 आएगा, स्लाइटली इम्प्रूव होगा। तो ओके। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ओके। हो सकता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। सर माय अनदर क्वेश्चन वुड बी कि सिंस वी आर सेइंग कि अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपना ऑलरेडी इन हाउस है काफी हद तक, तो उसमें मुझे ये समझना था सर कि कितना मशीन का मैन्युफैक्चरिंग अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलर एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कितना अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप कुछ परसेंटेज टर्म्स में या ऐसा कुछ मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इट्स अ असेंबली लाइन जहाँ पे हम शायद थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग करके मंगवाते हैं, कैसा मिक्स है सर उसमें? देखो इसमें संजय जी ये है कि वहाँ हमारी इंडस्ट्रीज में जैसे मैं से फॉर एग्जांपल सिंपली समझाऊं तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टायर नहीं बनाते, जैसे ही करेक्ट। सीएनसी सिस्टम जैसे आपने बताया बॉल हम्म। स्क्रूज, शीट मेटल्स और नट्स एंड बोल्ट्स, बेल्ट, ये सब चीजें तो कोई कंपनी वर्ल्ड में नहीं करेगी। तो ओवरऑल आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट की मैं बात करूं और या फिर हम्म। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में आप मैक्सिमम 80 हम्म। परसेंट तक ही कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्ट। नंबर ऑफ वैल्यू, आई एम टॉकिंग करेक्ट। अबाउट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ओके। 20% कंपोनेंट तो आपको बाहर से लेने ही लेने हैं। करेक्ट लेकिन है मैक सर। पावर अभी जो बना रहा है उसमें ऑलमोस्ट 80% कर सकते हैं, तो हम लोग 40% 45% तक ही कर रहे हैं। ओके। उसमें भी 2500 मशीन के लिए हमारे पास स्पिंडल का जो कैपेसिटी है वो 1700 1800 का, पाउडर कोटिंग का कैपेसिटी 2000 का। तो हम लोग पहले जो 2500 और उससे भी ज्यादा का हमारा पूरा इन हाउस का जो कैपेसिटी है उसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद का जो 60 एकड़ वाला है वहां पे जो रिमेनिंग 30-35% जो बचेगा उसमें हम लोग ग्रेजुअली उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके हम लोग 75 to 80% तक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके। ओके। ठीक है सर, मैं क्यू में वापस आता हूँ। जी Thank you. We'll take the next question from Deepak Pandey. Please go ahead. Hi sir, congrats on a good set of number. थैंक यू। सर ये लास्ट क्वेश्चन में जस्ट एक क्लेरिफिकेशन था, फाउंड्री हमारी इस सेटअप में नहीं आएगी, राइट? नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी। ओके सर, दो तीन बुक कीपिंग क्वेश्चन थे। ऑर्डर बुक इफ यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड, लार्ज ओईएम से कितनी है और एसएमई से कितनी है, और उसमें सेक्टर वाइज भी। सेक्टर वाइज में जो है हमारा ऑलमोस्ट मेनली अभी जो ग्रोइंग सेक्टर है उसमें ज्यादातर जॉब वर्क का है हमारा, जनरल इंजीनियरिंग है, डाई एंड मोल्ड्स है और ऑलमोस्ट 20 करोड़ का डिफेंस का हमारा ऑर्डर बुक है। तो लार्जली हमारे पास ऑर्डर मिक्स्ड है। मैंने अभी सेक्टर वाइज या फिर सेगमेंट वाइज बहुत फोकस इसलिए नहीं बढ़ाया कि मैंने
दीपक जी बताया था लास्ट कॉन कॉल में कि अभी हम लोग क्योंकि सेक्टर वाइज और सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट खुला पड़ा है मैक्स पावर के लिए। इंडिया का कंजप्शन का 2% और इंडिया की प्रोडक्शन का मैं 4% लेता हूँ। तो मेरे लिए 10% पे मैं अगर सेगमेंट और सेक्टर वाइज काम करूंगा ना, तो थोड़ा मेरा मैन पावर का और ऑफिस का ब्रांचेस का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अभी तो जहां हाथ डालो वहां ऑर्डर है, तो वहीं से हम ले लेते हैं। हम सेक्टर वाइज या फिर सेगमेंट वाइज काम नहीं कर रहे हैं। 10% तक तो मार्केट खुला है। फिर भी मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर जॉब वर्क है, जनरल इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक डाई एंड मोल्ड्स है, ईएमएस सेक्टर में भी काफी अच्छा ऑर्डर्स हुआ है। और ज्यादातर हमारी ऑर्डर में Tier 3 Tier 4 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है। Got it, sir. Sir, दो छोटे question clubbed into one. What is the update on JV and tech partnership? And second, how is your 5-axis machine doing in the market? 5 एक्सिस थोड़ा ट्रिकी बिजनेस है। कुछ काफी रिस्ट्रिक्शंस भी है उसमें। हमें काफी एग्रीमेंट्स भी साइन करने पड़ते हैं कि ये डोमेस्टिक यूज के लिए जाएगा। इस बिजनेस में उतना बड़ा मार्केट इंडिया का नहीं है, एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा। और अभी जो कैपेसिटी है हमारी, उस हिसाब से वो एरिया में एग्जांपल दूं दीपक जी, तो फरारी वाला मॉडल है, उसकी मार्केट भी नीच रहेगी। और लीगल कंप्लाइंसेस भी बहुत फॉलो करने पड़ते हैं कि ये मशीन अगर गलती से भी डोमेस्टिक की जगह पे डिफेंस में चला गया तो वो काफी बड़ा रिस्क फैक्टर भी बन सकता है। तो वो एरिया में हम उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास 5 एक्सिस मशीन्स का एक हमने एग्जीबिशन दिया है एरोनॉटिक्स के लिए, और एक मशीन हम लोग जनवरी एग्जीबिशन में अगेन एग्जिबिट कर रहे हैं। लेकिन वो मेरा बिजनेस का मॉडल नहीं रहेगा कि 5 एक्सिस को मैं बेचूं, क्योंकि इंडिया का 5 एक्सिस का जो मार्केट है उसमें मैक्सिमम मशीन्स जो है वो इम्पोर्टेड है, बाहर से आता है। और मुझे कंट्रोल भी इंडिया को फानुक या मित्सुबिशी नहीं देता है, खाली हमें चाइना, ताइवान और सीमेंस, 99% सीमेंस ही चलता है। लेकिन उनकी कंप्लाइंसिस, बाफा एग्रीमेंट 300 पेज का, वो थोड़ा रिस्क फैक्टर है एक दो मशीन बेचने के लिए वो एरिया में। लेकिन कैपेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, इसलिए हम लोग साल में एक आध दो मशीन बेचेंगे। And sir, on the JV part? जेवी पार्ट का डिस्कशन अभी भी रेडी पड़ा है और अभी भी अपडेट्स कर रहे हैं। मे भी कुछ विजिट्स भी होने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि फैसिलिटी रेडी हो रही है। तो कुछ आगे बढ़ेगा तो हम मेरे ख्याल से कैपेसिटी के साथ में वो भी अनाउंसमेंट करेंगे। Thank you. We'll take the next question from Mahek Talati. Please go ahead. Mahek? Yeah, hi sir. Yeah. हेलो। Am I audible? या Yes, या yes. यू आर ऑडिबल। Yeah. Congratulations on a good set of numbers. थैंक सर यू। ये क्लेरिफिकेशन चाहिए था। हम बोल रहे हैं कि इस साल हम 90% कैपेसिटी यूटिलाइज कर देंगे, एंड न्यू कैपेसिटी भी जब आएगी तो कितनी आएगी? क्योंकि FY 28 के ग्रोथ के लिए फिर जो हम 30% प्लस टारगेट कर रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए हम कैपेसिटी कहाँ से आए, कि कब तक आएगा, किस कैसे आएगा, उसका कुछ क्लेरिफिकेशन दीजिए। मैं कि अभी जो 2500 का कैपेसिटी में 90% तो यूटिलाइज कर लिया। सेम ग्रोथ भी अगर करना है नेक्स्ट ईयर, तो ये 13 एकड़ वाला लैंड हमने इसलिए ही लिया था, 60 का वेट नहीं किया। और उसका हमारा मानना है कि हम लोग Q2 के अंदर उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। लेकिन कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी और कितना डीबोटल नेकिंग होगा, उसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम क्या मशीनरीज खरीद रहे हैं कंपोनेंट के लिए, क्या कंपोनेंट की कैपेसिटी है वो हम ऐड कर रहे हैं, और कितनी असेंबली लाइन वहां पे ऐड होगी। तो वो टोटल कैलकुलेशन अभी चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये जो 9+4 एकड़ 13 एकड़ वाला प्लांट है, उससे हमारी नेक्स्ट ईयर की विजिबिलिटी ग्रोथ की वेरी इजीली आ जाएगी। हाँ जी मैं। Yes, Mahek. We'll take the next question from Bhargav Buddhadev. Please go ahead.
Good afternoon, sir. Congratulations for a very good set of numbers. थैंक यू वेरी मच भार्गव जी। हाँ जी। सर ये जो अपने जो 13 एकड़ वाला जो प्लांट बना रहे हैं, तो अपने ये प्लांट में काफी खर्चा कर रहे हैं। पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी बना रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख का स्क्वायर फीट का असेंबली बना रहे हैं। सो पर्पस क्या है, मतलब इतना अच्छा प्लांट बनाने का क्या हम टारगेट कर रहे हैं कि जो हमारा हिस्टोरिकली एमएसएमई कस्टमर बेस था वहाँ से हम माइग्रेट करके थोड़े इंस्टीट्यूशनल और डिफेंस एरोस्पेस जैसे ऑर्डर्स ले। सो उसी वजह से ये इतना अच्छा प्लांट बनाने का सोचा है। हाँ, बात तो वो भी सही है थोड़ी कि इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं। दो रीजन है भार्गव भाई। एक तो रीजन ये है कि आपका कॉस्ट जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर में 20-25% का फर्क पड़ेगा। अगर आप विजिबिलिटी में अगर 2-3 साल 4 साल का विजन लेके चलते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि कुछ मशीनें हम भी अभी जो बनाते हैं उसमें थर्मल कंपोजिशन और टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो मशीनों पे आता ही है। उसको हमें सेट करने में थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है। तो ये करने से 26 डिग्री में सेट करने से हमारा वो टाइम भी सेव होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगा। दूसरा कि जब आप जेवी की बात करते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास मशीन्स की और डिफेंस एंड एरोनॉटिक की बात करते हैं, तो इस टाइप की असेंबली का कंपल्सन है, 100% चाहिए ही चाहिए। तो वो सेगमेंट को भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए भी कर रहे हैं। तीसरा है कि ये बजट भी हमने बढ़ाया। पहले 30 to 40 करोड़ था, वो 50 तक ले गए। बिकॉज जब हमने अनाउंसमेंट किया था भार्गव भाई तब ये पॉलिसी नहीं था। अभी 1 महीना ही हुआ है ये पॉलिसी आने में। तो वो जो लेट होता है भगवान अच्छा ही करता है, वो हमारे लिए हुआ। नहीं तो 25% और ये इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलता और मैं 30 करोड़ में चला लेता। तो अब ये बढ़ा रहे हैं हमने, उसमें आपने सही कैलकुलेशन लिया है। और कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन और ये सेंट्रली एयर कंडीशन वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब वर्ल्ड में टॉप 5 प्लांट जो है उस हिसाब से ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्योंकि 60 एकड़ में भी हम लोग वही करने का प्लान करके आगे बढ़ेंगे कि वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, क्योंकि मार्केट है वो स्टाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना चाहेगा। और ये सब चीज करने से आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि कुछ फैसिलिटीज से आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। और सर ये जो अपना जो लीज कॉस्ट है वो करीबन अज्यूम कर सकते हैं कि 40-50 लाख का साल का खर्चा होगा। और दूसरा सर, ये जो इंटरेस्ट रेट सब्सिडी है, मतलब अगर बैंक अपने को 8.25% पे लोन देता है तो इसका अजम्पशन ऐसा होगा कि 7% गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगा, तो अपना खर्चा सिर्फ 8.25% ही होगा इंटरेस्ट का। देखो, पहला भार्गव भाई कि 50 लाख तो बहुत ज्यादा बोला आपने। मैं उतना ज्यादा तो नहीं दूंगा, मैं बहुत टोकन रेट में ही लेता हूँ। तो ये मार्केट वैल्यू इसका जो है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, जो मेरा नॉलेज है उस हिसाब से 40 करोड़ का है। और 40 करोड़ की जमीन का जो रेंट है वो ईयरली <1% है। तो ओह। ये गेम चेंज मेरे यही से होता है कि आप गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, आपका इंटरेस्ट फ्री लोन है, फिर आपका कैपेक्स में 40 करोड़ रुपया मेरा बच गया, जिसमें सब्सिडी नहीं मिलता हमें, क्योंकि लैंड पे सब्सिडी नहीं होता है। तो यही गेम के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, जो 1 साल से थोड़ा प्रेशर में भी थे, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत बढ़ रहा था और एग्जीक्यूशन में थोड़ा। फिर यहाँ पे ये साल के लिए 3 प्रीमाइसिस रेंटल पे लेके भी ये साल का ग्रोथ 2400-2500 की कैपेसिटी जो हम बोलते हैं 2500 की, उसमें 90% यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये रीजन भी है कि आगे का जो फ्यूचर का ग्रोथ रहेगा वो इस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आएगा। तो ब्याज का खर्चा सर 1.25% ही होगा ना, अपना जो खर्चा ब्याज का होगा। खर्चा जो होगा वो 7% गवर्नमेंट देगी, और 8.25 तो 1.25% से ज्यादा साल का। ओके। तो और हमारा लास्टली कैपेक्स है जो वो बहुत ही निग्लिजिबल कॉस्ट पे हो रहा है। और लास्टली सर, हमारा रियलाइजेशन 20 लाख रुपया पर मशीन पे पहुंच गया है, और ऑर्डर बुक में 40% नेक्सा ऑर्डर है। सो जैसे जैसे नेक्सा ऑर्डर्स रेवेन्यू में आएंगे, ये रियलाइजेशन यहाँ से बढ़ते ही जाना चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बाकी की जो 60% ऑर्डर है, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, उसमें भी आपको नंबर्स चाहिए। तो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें रिसीविंग ऑर्डर का एवरेज वैल्यू पहुंच गया है 20 लाख 90 हजार या 21 लाख। वो एवरीडे प्लस माइनस होता है। अगर 60% में से आ गया तो कम हो जाएगा, बड़ा मशीन आ गया तो बढ़ जाएगा। तो अभी नियरली हम लोग 1 करोड़ प्लस पे ऑर्डर बुक पे पहुंच गए। Okay, sir. Thank you very much and all the very best. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sir, we'll take two questions from Q&A box. It's from Vishwas Singhal. He's asking, in Q4, you mentioned that 80 fully built machines were sitting in opening inventory, waiting for customer bank loan signatures and subsidies, and stated that these would clear within 7 to 10 days. Did those 80 machines actually get built and converted to liquid cash in Q1? Furthermore, what is the current inventory level of finished machines sitting at your tech centers today? Right now, that 80 machines is almost, I think, 90% machine is executed, and right now we have more than, I think, we have to keep the same inventory for each and every quarter. Without that inventory, because suppose in this quarter, I think end of this month, uh, tomorrow is the last day of month. So many of the machine will forward for next month, because we are waiting for their payment. Maybe first, second, third, maybe it's not possible. Every month, 70% payment is received out of 100 names or 100% names. Say, for example, we have a 300 names, then 65% payment received. Another 33% payment will received on first week or before 10th. So this is the trend. So every month, some of the machine is forwarded on month basis and quarter on quarter basis. Secondly, right now in our tax centers, I think we almost is empty. There is no machines except one or two machine in one tech center or another tech center. So right now we are struggling for the delivery for our customers. So inventory or any demonstration machine is also sold out. So there is no machines in tech center. Okay, sir. His next question is, Nexa machines accounted for 40% of your 406 crore order book in Q4. What was the exact revenue share of Nexa series machines in Q1 FY27 versus lower margin traditional models? So I think we already calculated is nearly the same. 39 to 40% is executed in quarter one by Nexa product. Okay. And out of 376 crore in defense and aerospace bids under evaluation, what is the timeline and conversion rate we should expect in H1 FY27? Nobody can predict that area, because since 2 years old tender is not yet open. So Okay. I think you cannot predict, but normally the quarter 3 and quarter 4, because they have a budget, and if they will not open and not place the order, their budget will, I think, skip for the next financial year, and they have to give the lots of reason, and they have to apply the new budget for that capex. So quarter 3 and quarter 4 is the maximum realization of opening the tender. Thank you, sir. We'll take the next question from Arnav Sakhuja. Please go ahead. Hi, thank you for taking my questions. So my first question is, I just wanted a bit more clarity on the guidance. So you raised the revenue guidance to over 30% revenue growth, but is there any change in the EBITDA and profitability guidance, or does that remain the same? I think right now in quarter one is we already achieved 16%. So I'm expecting that some of the percentage definitely will increase in the EBITDA margin also on quarter, these 3 quarters. Oh, and so my next question is, given the whole West Asia war that took place during the entire quarter one and is still taking place, has that affected our
business performance in any way, or does it not really impact us? That area is not, I think, we are working. So it's 0% effect on this war or anything, because we are not focusing on any export and we have a 1 year inventory for our one component we are buying from Taiwan, only ball screw and LM guideways by one company. So I think this war or anything is not that much affected to the Mac Power. Okay, congratulations again, and thank you for answering my Thank questions. you very much, Arnav. Thank you. We'll take the next question from Kumar Saurabh. Please go ahead. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गुड सेट ऑफ नंबर सर। सर मेरा भी क्वेश्चन मार्जिन पे है। जैसे 2-3 साल पहले हम लोग 200 करोड़ के रन सेल्स पे थे, और जब हम 200 करोड़ से 300 करोड़ गए तो मार्जिन में काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन आया, और आई थिंक बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बट अभी 300 करोड़ से जब हम 450 करोड़ जा रहे हैं तो लगता है कि हमारा मार्जिन वही 17-18% रहने वाला है। तो लास्ट 200 से 300 करोड़ में इतना बड़ा एक्सपेंशन क्यों आया और अभी क्यों नहीं आ रहा है? एंड आपने पहले गाइडेंस दिया था लॉन्ग टर्म 4-5 साल लगेगा कि मार्जिन 20% प्लस जाएगा। हाउ वेयर आर वी सर ऑन दैट पाथ? अभी इस साल होगा थोड़ा बहुत या अभी नहीं होगा? इफ यू कैन क्लैरिफाई। देखो, मैंने पहली बार बहुत बार ये बताया था कि 3 तरह से मार्जिन इंप्रूवमेंट आता है। एक तो आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। जैसे कि आज मैं बात करूं कि कुछ कंपोनेंट में स्पिंडल्स की बात की, हमने पाउडर कोटिंग की बात की, जॉब वर्क की बात की। हमारी कैपेसिटी है कभी कोई एरिया में 1200, कोई एरिया में 1500, कोई एरिया में 2000। तो उसमें जॉब वर्क कॉस्ट जो है आप बाहर कराते हैं, उसकी कॉस्ट जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बढ़ती है। दूसरी, इस सेल्स में काफी ऑर्डर्स में सेल्स में ट्रांसपोर्ट जो है वो इंक्लूड होता है, तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। कैसे? आपका नंबर ऑफ मशीन बढ़ेगा। तो तीसरा है परचेज में भी जो ट्रांसपोर्ट यूज होता है, कस्टम ड्यूटीज जो लगती है उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। तो ये हुआ आपका वेरिएबल पे जब नंबर्स बढ़ेगा तो। और अब जब समझो कि नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर का विजिबिलिटी चाहिए तो आपके लिए प्री ऑपरेटिंग प्रिलिमिनरी कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो मार्जिन जो आएगा वो 3 तरह से आएगा। एक तो आप जब नंबर्स ज्यादा देंगे, जैसे आप Q1 लास्ट ईयर का और Q1 ये साल का देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ आप देखो तो 52% है, लेकिन आप पैट का मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है। तो यही पैटर्न होता है ये बिजनेस का कि आप जब कुछ बड़ा नंबर्स करते हो, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कभी 20% 21% हो गया था। तो अगर आप जैसे नंबर्स ज्यादा देंगे तो आपकी मार्जिन डेफिनेटली ईबिटा पे इंप्रूव आएगी, नंबर 1। नंबर 2, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप काफी मटेरियल्स बाहर से लेते हैं, कंपोनेंट बाहर जॉब वर्क कराते हैं। जब आप ये सब चीज सारा इन हाउस करेंगे तो आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट आता है। और तीसरा है कि आपका डिफेंस का ऑर्डर विनिंग रेशियो जो है वो रैपिडली बढ़े। तो ये 3 एरियाज है, पर फिर भी हम लोग मैंने जैसे बताया कि हर क्वार्टर में डेफिनेटली ईबिटा का इंप्रूवमेंट आप देखेंगे और वो अच्छा इंप्रूवमेंट ही दिखेगा। थैंक यू सर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज सर, ये जो हमने नया लैंड लिया, फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन को क्लोज करने के लिए। सो अभी इससे इमीडिएटली सर एज यू सेड की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, बट वो असेंबली लाइन आएगी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, वो सब का फायदा होगा। तो ये जो पूरा पैसा इसमें जा रहा है, इसका जो कैपिटल एलोकेशन अगर आप समझा सके कि मतलब इस पे कैसे हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। देखो, एक बात ये मैं बता रहा हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए अब ये एग्जिस्टिंग यूनिट में कोई 2500 से ज्यादा बनाने का पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लैंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ के लिए ही ली गई है, लेकिन कितना बढ़ेगा उसका कैलकुलेशंस अभी तक हुआ नहीं है। अभी फर्स्ट फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो 1200-1500 स्पिंडल 2000 का शीट मेटल, ऐसा मैं जैसे बताया आपको, उसको अगले ग्रोथ को कैलकुलेट करके हम लोग उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, नंबर 1। उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। और दूसरा कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंस्ट्रक्शन का एरियाज, क्योंकि असेंबली पूरी वहां पे लेके जा रहे हैं कि कितनी
हम लोग प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक कुछ बास्केट है जिसमें हम लोग 2 बार फ्लोर पे उनको मूव करा सकते हैं। समझो कि एक मशीन रखा है वो 15 दिन, और उसके बाद दूसरे 15 दिन दूसरा मशीन, तो 2 बार हमें वो फ्लोर यूज करना मिल रहा है। हम एक एक कुछ नया इनोवेटिव लेके आ रहे हैं कि उसको हम लोग 2.5 टाइम 2.5 टाइम कैसे कर सके। तो हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी हम कैपेसिटी नेक्स्ट ईयर के लिए ये 2 प्लान से लाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है वहां पे हम लोग कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशंस की मशीनें खरीद रहे हैं, कुछ कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज कर रहे हैं स्टेज 1 में। उसके बाद हम लोग फ्लोर को यूज कितनी बार कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 2.5 टाइम मैं आराम से कर लूंगा। तो वो कैलकुलेशंस का डिटेल जो है वो Q3 में मैं देने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि ये 50 करोड़ के सामने हम काफी बड़ी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो फाइनल है। लेकिन कितना होगा वो अभी कैलकुलेशंस नहीं हुआ है, तो वो एजम्पशन पे मैं फिगर नहीं दूंगा। Sure, sir. That's all, sir. Wish you all the best. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. We'll take the next question from Piyush Jain. Please go ahead. हेलो। हाँ जी Yes, पीयूष। Piyush. या रुपेश भाई, वेरी गुड नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि ये जो अपना जो अभी हम अपनी कैपेसिटी बोलते हैं, जो 2,500 वो है, जो आप बोल रहे हैं कि अभी ये 90% यूटिलाइज हो जाएगा इस साल में। तो ये जो 13 एकड़ लैंड वाला है, ये हमारा कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन कब से हो पाएगा, सो दैट नहीं वी डोंट लूज आउट ऑफ एनी क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू? 12 मंथ का टारगेट करके चल रहे हैं हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। तो मैं मान रहा हूं कि Q2 में या ऑलमोस्ट जून के अंदर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। तो कोई इम्पैक्ट आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं आने वाला है, वही सेम ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, एक और चीज रुपेश भाई, पहले आप ड्यूरिंग द क्वार्टर का भी एक ऑर्डर इंक्रीमेंटल कितना आया ये एक डेटा देते थे, और वॉल्यूम का डेटा भी देते थे। बट स्टिल मैंने जो मेरा कैलकुलेट किया है, ये क्वार्टर में हमने तकरीबन 140 या 145 करोड़ का नया ऑर्डर रिसीव किया। कैन यू कंफर्म दैट नंबर? तो बेसिस विच आई जस्ट वांट टू आस्क कि व्हाट इज अ order pipeline which you see, because suppose I haven't calculated for the last quarter of March कितना हमने ऑर्डर बुक न्यू ऑर्डर लिए थे, बट करंट क्वार्टर में हमने 145 करोड़ का ऑर्डर किया है। इज इट अ हाईएस्ट ऑर्डर रिसीव्ड इन अ क्वार्टर फॉर द कंपनीज हिस्ट्री, एंड इज नंबर मूविंग टुवर्ड्स दैट कि हम क्वार्टर बेसिस पे 150-200 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो भी देख सकते हैं? देखो 145 करोड़ की न्यू ऑर्डर के सामने हमने 95 का एग्जीक्यूशन दिया, इसमें सर्विस का भी आधा थोड़ा रेवेन्यू, तो 93 94। तो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के अंदर जो आप बोल रहे हैं 150 करोड़, तो हम तो उससे भी बड़ा करके करने का प्लानिंग करके जा रहे हैं। और वो जर्नी स्टार्ट है क्योंकि ऑलमोस्ट ये मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से यस, उससे भी ज्यादा होगा। ओके, एंड जस्ट जो मेरे नंबर के हिसाब से हमने लास्ट ईयर वॉल्यूम जो है वो 1650 या 1700 के आसपास मशीन भरी होगी। आप कुछ डेटा बता सकते हैं एक बार, लास्ट ईयर हमने कितनी यूनिट? नंबर्स का डेटा थोड़ा मुझे लगता था कि हम लोग जो आगे का स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं उसमें थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना, थोड़ा मुझे कंपटीशन में और सप्लाई अच्छा, चेन। चलो चलिए ठीक है, बस इतना बस मेरा क्वेश्चन ये है। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा बस क्वेश्चन एक ही चीज है, जो मेरा एक्चुअली सवाल यही है कि नेक्सा का जो परसेंटेज हमारा जो बढ़ा है, और अभी भी आप जो बोल रहे हैं नेक्सा इज अ 40%, इज अवर एवरेज रियलाइजेशन इज इंक्रीजिंग क्या? बिकॉज व्हाट आई फॉलो मैक पावर फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स, हम 18-19 से अभी भी 20 लाख के आसपास ही एवरेज रियलाइजेशन है, 20 लाख या 21 लाख के अंदर। So is Nexa 40% will be taking our average realization towards higher side? देखो ये क्वार्टर में जो क्वार्टर खत्म हुआ उसमें मैंने जैसे बताया कि 21.9 के आसपास, 20.9 के साथ, तो 90,000 एवरेज रियलाइजेशन ऑर्डर बुकिंग का बढ़ा है। तो वो ग्रेजुअल बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि नंबर्स की गेम जो आप करने जा रहे हैं कि अगली कैपेसिटी बहुत बड़ी एज्यूम करते हैं हम लोग 10,000 की, तो उसमें
जो बहुत हाई वैल्यू पे फोकस करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि टर्निंग मशीन्स जो है लेस देन 20 लाख रुपीस, उसका नंबर्स जो है इंडिया में 32,000 मशीन बनी, उसमें से 12-13 हजार 14 हजार तक का मशीन लेस देन 15 लाख था। तो आप एवरेज रियलाइजेशन से ज्यादा बाकी का 1 करोड़ से ऊपर का मशीन्स जो है वो मेरे हिसाब से 1,000-1,500 से ज्यादा नहीं था, और 2 करोड़ के ऊपर की मशीन 50-100 से ज्यादा नहीं होगी, 3 करोड़ की 10 मशीन भी नहीं होगी। सो एवरेज रियलाइजेशन की मैं अगर एग्जांपल पे बात करूं तो सबसे ज्यादा मारुति ही बिकेगी, फरारी या मर्सिडीज का नंबर्स कम ही रहेगा। तो हमारा कोई भी बास्केट से ऑर्डर आए, हम लोग आज की डेट में भी जैसे मैंने बताया कि हम लोग सेगमेंट वाइज, बास्केट वाइज और टीयर 1 टीयर 2 वाइज नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग्स जो है वो बहुत बढ़ जाती है और वो दबाव बाकी पीएस कंपनियों में देखा गया है। तो 10% तक हमें कोई भी प्रोडक्ट मिक्स बास्केट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका टॉप लाइन बढ़ना चाहिए, आपकी प्लांट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ द नंबर से ज्यादा प्लांट कैपेसिटी आपकी टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। मेरे नॉलेज के हिसाब से 20 लाख आ रहा है तो 500 करोड़ की विजिबिलिटी ये प्लांट में है। तो अभी भी नेक्स्ट ईयर पे भी हम लोग नंबर्स पे और 20 का 21 लाख की एवरेज प्राइस बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उससे ज्यादा स्ट्रेच करने से आपको ऐसी बास्केट पे फोकस करना पड़ेगा जहां का मार्केट बहुत नीच है और थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी है, इंपोर्ट के साथ आपको डायरेक्ट फाइट आएगी। तो वो ग्रेजुअली बढ़ेगा जब हमारी 60 एकड़ की लैंड का विजिबिलिटी और एक्सपेंशन कंप्लीट होगा, तो डेफिनेटली सेपरेट सेपरेट लाइंस रहेगी हर बास्केट के साथ, और हर बास्केट को हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और उसको मार्केटिंग की नेटवर्क और एक्सपोर्ट पे भी जोड़ेंगे। लेकिन अभी ये जल्दबाजी करना थोड़ा हमारा जो ये बहुत अच्छा ग्रोथ जर्नी है उसको डिस्टर्ब कर देगा। Thank you. We'll take the next question from Garvita Jain. Please go ahead. Hello, hi. Good afternoon, sir. I have one question. If you could give me a range of the price of the machines which are high-end versus low-end or mid-end machines, and like how does this price band varies across the industries like aerospace and defense and general industrial machines, so that I can estimate how much is the realization or average selling price difference we are expecting with the change in the order book mix? Already, I think I had given this question that average price realization is 20 lakh. Now, in our new order book, it is increased by 20 lakh plus So what I'm 20.89. asking is average I got, but if you could give me the price band कि जो low end machine होते हैं वो मान Low लो end machine is 12 lakh to 20 lakh rupees, Garvita, and middle range machine is 20 lakh to 30 lakh rupees, and 30 to up to 2 crore machines is a higher end machine for us. Okay. And sir, is there any price change we have taken this quarter because of the increase in the raw material prices? Yes, definitely. We increased the price by 4 to 6%. And this first quarter, we had given the chance to our customer who have given the order that if you are not lifting the machine, you are eligible to give us the 4% to 6% new price increment. So from the 1st June, already the new price is effected and all the invoice is by the new price. Okay. And one last question, if you could give any volume growth in terms of units, if you could give for quarter one. Volume growth, definitely. Without volume growth, I How think much was it, sir? Number of units, if you can give me. almost, I think the revenue growth percentage is same by the number of growth, because So average volume price growth is is almost same. Yeah. Acha. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. We'll take the next question from Rahil Shah. Please go ahead. My question. So Yes, मेरा Rahil. question यही है कि the cash conversion cycle days and our inventory days have consistently risen over the past 3 years. So
is this more like a permanent feature of doing business with defense and large businesses, or it's just a working capital issue? Rahul bhai, can you please, I think your voice is not clear, so can आपका you वर्किंग कैपिटल थोड़ा बड़ा है ओवर द लास्ट ईयर FY26 में, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ विल इट मूव. वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Am I audible, sir? या बढ़ा है कि बढ़ेगा, क्या पूछ रहे हैं? Last 3 years से increase हुआ है, तो Okay. is it more like a permanent feature or ये I एक think yes, working but capital issue है? but definitely in terms of percentage, if you calculate, then it is not that much big in terms of the percentage. But जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा राहिल भाई, तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा ही ना. 100 करोड़ की बिजनेस से 200 करोड़ का हुआ, 200 से 300 का हुआ, अब 450 का होगा, नेक्स्ट ईयर 600 का होगा, तो वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रुपीस बढ़ेगा. लेकिन अगर आप कैलकुलेट करते नहीं, हैं, मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात कर रहा हूँ. इन्वेंट्री डेज भी इंक्रीज हुई है. हाँ, तो इन्वेंट्री का जैसे मैंने बताया है अपना काफी कॉन कॉल्स में कि इन्वेंट्री ही हमारी लाइन में गेम चेंजिंग होती है राहुल भाई. जैसे कि हमारे पास 364 वेरिएंट है. आप 70% बिजनेस जो एग्जीक्यूशन होगा मंथ वन मंथ, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. 30% है अनप्रिडिक्टेबल है. तो आपके पास कौन सी वेरिएंट का कौन सा मॉडल आएगा वो आपको पता नहीं है. तो आपके पास इन्वेंट्री रहेगी तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लीड टाइम, लॉजिस्टिक टाइम और असेंबली टाइम जो है वो कंपोनेंट का है. असेंबली टाइम है वो बहुत ही निग्लिजिबल है. तो इन्वेंट्री इज गेम चेंजिंग. दूसरा है कि आप वर्किंग कैपिटल यूज नहीं करते हो, आपके पास कैश बहुत ज्यादा पड़ा रहता है, तो बैंक से मुझे क्या मिलेगा 2-3%, तो उससे बेटर है इन्वेंट्री रखो. उससे फायदा ये होता है कि सप्लाई में बायर से ऑर्डर देने में, एक साथ ऑर्डर लिफ्ट करने में बहुत सारा अच्छा सा डिस्काउंट भी मिलता है. कुछ कंटेनर्स भर भर के ऑर्डर इंपोर्ट करते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी फायदा होता है. तो इन्वेंट्री है वो ये इंडस्ट्रीज का हमेशा से गेम चेंजिंग ही रहने वाला है. आज मेरे एक मशीन में राहिल भाई 1000 अप्रोक्सीमेट कंपोनेंट है. 19,000 प्लस कंपोनेंट की इन्वेंट्री में मैनेज करता हूं. अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होगा ना, तो ये 364 वेरिएंट का एक आध दो मशीन आप डिस्पैच नहीं कर पाओगे. तो इन्वेंट्री हमेशा ये इंडस्ट्रीज का गेम चेंज रहा है. और मुझे लगता है कि वो इन्वेंट्री हमारा जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो हम डेफिनेटली इन्वेंट्री बढ़ाएंगे, लेकिन वो उसका वैल्यू जो है वो कम होगा जब हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे. तो हम जो Okay, जब sir. हम Thank you. All the very best. Thank you. We'll take the next question from Aryan Vijayan. Please go ahead. Hello. Yes, Aryan. Sir, I wanted to ask what is the future target in terms of revenue and profitability of the company? what's the target of? Revenue and profitability target in the future I think for FY27 or I think year on year we are targeting that will deliver you more than 28 to 30% year on year in terms of sale? in terms of the revenue. And what about the margins? Almost, Do you almost expect to? in terms of almost margin also, in EBITDA also, in revenue also, and in the PAT also. And sir, what is the bidding pipeline currently of the company? What is the ये बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है कुछ ज्यादा? There is a background noise. Hello. Vision, yeah. Sir, what is the current bid pipeline for the company? The noise, voice is not audible, Vision. What is the current order pipeline for the company? Order pipeline, I think we had given everything. I think बोला 456 crore order is received with the advance, and 1,000 plus domestic quotation bid. Everything is in presentation. Yeah. Thank you, sir. We'll take the next question from Gaurav Shukla. Please go ahead.
Sir, congratulations for very good set of numbers. Am I audible, sir? Thank you, Yes, Gaurav ji. Gaurav. Yeah, you are audible. Sir, last participant has asked, आपने बताया कि मार्जिन भी उसी रेंज में बढ़ेंगे। मार्जिन हमारे 17-18 हैं इस समय, तो FY27 के सस्टेनेबल मार्जिन क्या रहेंगे, यही रहेंगे या 20 के आसपास जाएंगे? नहीं, 20 में जाएंगे वो मैं Q3 में बता पाऊंगा, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कितना होगा और फिक्स कॉस्ट और रेवेन्यू का जो एक्सपेंसेस जो है वो मेरा टारगेट है 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20-21%। वो मैं कितना स्ट्रेच कर पाता हूँ टूवर्ड्स द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि हाईएस्ट कॉस्ट जो है टोटल एक्सपेंसेस में मटेरियल को छोड़ के वो सैलरी एंड जॉब वर्क है, ऑलमोस्ट 60% कॉस्ट आ जाती है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कितना हम कर रहे हैं और कितना हमारा जॉब वर्क का कॉस्ट कम होगा उसको कैलकुलेट हम लोग, मैंने वही बताया। उसके साथ में कैपेसिटी कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो वो दोनों फैक्टर को कैलकुलेट करके हम लोग ये नेक्स्ट ईयर का जो विजन है वो मेरे ख्याल से डेफिनेटली बढ़ेगा दोनों साइड से, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और EBITDA। पर कितना वो मैं आपको एज्यूम करके नहीं बता पाऊंगा, मैं Q3 में अनाउंस करूंगा। सर, थैंक यू फॉर दिस आंसर। सर, रिसीवेबल पिछले मार्च के 34 करोड़ थे, अभी बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या हुए हैं रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल? કેટલા જગ્યા હતો ટ્રેડ રિસીવેબલ Q1 માં? એક મિનિટ હો. તમને બધાને કીધું હતું रिसीवेबल 46 करोड़ था सर एंड ऑफ मार्च। ओके, वो कितना हुआ अभी? ठीक है, we can share this later, sir. We'll proceed to the next Okay. question. Thank you. We'll take the follow-up question from Mahek Talati. Please go ahead. Yeah, hi sir. Sorry, my line got dropped. No sir, problem. लास्ट क्वार्टर में हमारे को 15-16 करोड़ का रेवेन्यू डिले हुआ था जो पोस्टपोन हुआ था, सो वो पूरा इस क्वार्टर में रिकॉग्नाइज कर दिया है कि बाकी है? नहीं, हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था महक जी की हर क्वार्टर में कुछ मशीनें नेक्स्ट मंथ के लिए फॉरवर्ड हो गई। नॉर्मली क्या होता है कि मार्च में सब लोगों को टारगेट पूरा करना है, बैंक को, PSUs को और कस्टमर को भी मशीन चाहिए, तो मार्च में फॉरवर्ड नहीं होती है ज्यादातर, लेकिन हुआ था वो एक क्वार्टर में रियलाइजेशन हो चुका है। और हर क्वार्टर में हमें थोड़ी मशीनें रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्डर बुक से किसका पेमेंट आ जाए तो वो ज्यादा डिलीवरी के लिए वेट नहीं कर पाएगा। तो अभी भी हमारे पास सेम नंबर्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फॉरवर्ड हुए, तो ये जर्नी है वो हम लोग लास्ट क्वार्टर में 99% पूरा करने का ट्राई करते हैं, लेकिन काफी मशीनें ट्रायल पे पड़ी है जिसका एक दिन का काम बाकी है, क्वार्टर खत्म हुआ तब। और काफी जो मशीनें हैं वो मेरे ख्याल से रेडी टू डिस्पैच है, तो वो जर्नी है। बट यस, वो मशीन्स जो है उसका रियलाइजेशन आ गया है, फर्स्ट मंथ में ही आ गया है। ओके, एंड सर और ये जो का एक क्वेश्चन था वो 33 करोड़ अपना रिसीवेबल रिड्यूस हुआ है Q4 की वजह से। 33 है अभी Q1 में, 33 करोड़। Okay, sir. Yes, ओके, Mahek. हाँ, एंड सर ये जो डिफेंस की पॉलिसी जो अभी भी फाइनल हुई नहीं है, तो सर क्या टारगेट है, कब तक ये फाइनल हो जाएगी और कब तक हमें लैंड हैंड ओवर होनी चाहिए फॉर अवर न्यू 60 एकड़ का जो है पॉलिसी, वो कब तक उसमें होगा, कुछ टेंटेटिव उसमें आइडिया? मैं जाके आया हूँ, वहाँ पे मिल के आया था मिनिस्ट्री में, और इंडस्ट्रियल कमिश्नर, डेप्यूटी इंडस्ट्रियल कमिश्नर, और उनका मेरे साथ जो बात हुआ है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी है जो अभी हमने विकसित गुजरात पॉलिसी निकाली है उससे बहुत अच्छी है, तो आप पैनिक मत हो, वेट करो। और ये पॉलिसी हमने बना के अपने डेप्यूटी CM जो अभी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी है हर्ष भाई संघवी, उसके टेबल पे रखी है। अभी मॉनसून का अपना जो विधानसभा चल रहा है तो खत्म होते ही वो फ्री हो गए, आपका एनी टाइम 15 दिन या 1 महीने में आ जाएगा, ऐसा मुझे ये इनके जो इंडस्ट्रियल कमिश्नर, डेप्यूटी इंडस्ट्रियल कमिश्नर ने बताया है। ओके, एंड सर ये Yes, यस Mahek. Yeah.
या Yeah, एंड please. या एंड उसमें सर क्लेरिफिकेशन ये था कि जो टेक पार्टनर है वो लैंड आने के बाद ही फाइनल होगा, कि ये जो नई केपेक्स हम प्लान कर रहे हैं 13 एकड़ की लैंड में, उसमें उनके हिसाब से हम फाइनल करके कैपेसिटी सेटअप करेंगे। देखो ये इसमें अभी हम लोग ट्रायल बेस पे शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए मैकपावर खुद के लिए भी ये दोनों प्लांट शुरू हो जाएगा तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा हमें ग्रोथ के लिए जो स्पीड पकड़नी है उसमें जगह की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह या सैंपलिंग की तरह वो नहीं, ये 13 एकड़ में हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा काम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में जो टाइम है वो बचा लेंगे। लेकिन फुल फ्लेज पे उस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी खुद के लिए इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने का चैलेंजेस आ रहा है, तो दूसरों की प्रोडक्ट को बना के लॉन्च करके उनका पेन बढ़ाना अभी थोड़ा अर्ली रहेगा। पर यस, थोड़ा हम ये प्लान कर रहे हैं अभी कि एक आध दो मशीन हम उनकी सैंपलिंग कर ले, कि जब हम लोग फुल फ्लेज में नए प्लांट में आए तो वहां पे उनका टाइम, हमारा जो डेवलपमेंट का बच जाए। Thank you. Sir, we'll take the next question from Aniket Jain. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर, मुझे पूछना था, आप ईएमएस सेक्टर में कुछ मशीन सप्लाई करते हैं, तो मशीन लो एंड होती है, मिड एंड होती है या हाई एंड होती है? सेकेंडली, किस टाइप के कस्टमर्स होते हैं? ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, पीसीबी मैन्युफैक्चरर्स हैं, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिन्हें हम सप्लाई कर रहे हैं मशीन से? इनकी जो मशीनें हैं वो ड्रिल टैप सेंटर बोलते हैं इनको, और वो मेरे ख्याल से मिड सेगमेंट में आती है, जो हम लोग अभी हर महीने 2-3 मशीन दे रहे हैं। और हम प्लान कर रहे हैं जिसको ज्यादा बनाया जाए, जिसमें एक हाई स्पीड 20,000 आरपीएम का स्पिंडल होता है और बहुत ही हाई स्पीड रैपिड होती है। ये एक ओके। इनका स्पेशल फीचर रहता है, क्योंकि स्मॉल कंपोनेंट को फास्ट मशीनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा कटिंग की और स्पिंडल की स्पीड चाहिए, जिससे उनकी जो प्रोडक्ट बनाने की टाइम है वो रिड्यूस होती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है। तो वो कस्टमर जो हमारा है वो मेरा टियर 3 कस्टमर है, जो किसी टियर 2 की टियर 1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाते हैं। हाँ, गॉट इट सर। और इसमें मार्जिन प्रोफाइल सिमिलर रहती है जो हमारे और प्रोडक्ट्स की है, ये इसमें थोड़ा हाई मार्जिन है? और सेकेंडली, हम इसमें आगे ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? ये हमारा या शेयर ऑफ रेवेन्यूज कितना होगा अभी इसका, ईएमएस का टोटल में? नहीं, कुछ नहीं है। वैसे मैंने जैसे बताया था कि अभी तक हमने बहुत ही स्पेसिफिक सेगमेंट पे वर्कआउट नहीं किया है। सेगमेंट पे या क्लस्टर पे हम वर्कआउट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। कुछ समझो कि मुझे अभी कोई जगह पे मशीन देना है ईएमएस में, तो वो पहले मेरे पास 5 मशीन सैंपल का मांगेगा, फिर बोलेगा 50 मशीन 1 साल की क्रेडिट पे दे दो। ये सब चीजें वहां पे चल रही है। जहाँ पे बल्क आएगा वहां पे बायर्स का हाथ ऊपर रहेगा। तो अभी तक हमने सेगमेंट पे काम नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग कंजप्शन का 2% मार्केट शेयर ले रहे, खाली 2%। मार्केट खुला पड़ा हुआ है, अननेसेसरी उसकी कॉस्ट बढ़ाने की या फिर उनको क्रेडिट में मशीन भेजने का कोई मतलब नहीं है। ये बड़े सेगमेंट्स जो है वो मैक पावर के लिए आफ्टर 10% मार्केट शेयर का एरिया है। अभी मैं क्यों क्रेडिट दूं? और ये जो रिसीवेबल आप देख रहे हैं 33 करोड़, वो रिसीवेबल होता है जिसमें जो पीएसयू और बैंक का लेटर आता है हमें कि आप मशीन दे दो, हम आपको 3 दिन में पैसा दे देंगे, 4 दिन में पैसा दे देंगे। ये कोई क्रेडिट नहीं है। और वहां पे मुझे 1-1 साल 6-6 महीना उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है। जब तक मार्केट में 100% पैसा लेता हूँ, एडवांस के बगैर मशीन नहीं देता हूँ कि या बनाता भी नहीं हूँ, तो ये सब चीज हमारे लिए नहीं है कि आप कुछ सेगमेंट्स को या स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को टारगेट करके वर्कआउट करो। उनकी पेन बहुत ज्यादा है, वो करना पड़ेगा हमें 10% मार्केट शेयर लेने के बाद। Thank you, sir. We'll take the last question from Nexus Equity. Please go ahead. हेलो। अजय, Yes. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दी नंबर्स सर। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि जो अभी आप आगे जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो नया प्लांट कमीशन होने वाला है, तो उसके लिए जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे
फुलफिल करने वाले हैं और कितना फंडिंग रिक्वायर्ड होगा? हाँ, 50 करोड़ का टारगेट करके चल रहे हैं हम लोग। उसमें से 20-25 करोड़ तो मेरे पास ही पड़ा है। उसका कितना यूटिलाइजेशन हम करेंगे और कितना कैश जनरेट होता जाएगा, क्योंकि ये पूरा पैसा हमें एक दिन में नहीं चाहिए, एक साल में चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये नई पॉलिसी आई है तो थोड़ी डेट लेने का भी हम सोचेंगे, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री, मैं कंपनी का पैसा कहीं रख दूं तो भी मुझे 8-10% मिल जाएगा। तो मैं शायद डेट ले भी सकता हूं और नहीं भी, पर उतना डेट का प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो कंपनी के पास भी कैश काफी पड़ा है। और जो पॉलिसीज है ये मैं उसमें 6 महीने पहले खरीदा हुआ मशीन भी आपका एलिजिबल रहेगा। तो पहले हम अपने पैसे से ले लेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोन लेने जाएंगे, और कितनी लोन लेंगे वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमें 1-1.25% साल में मिल रहा है तो थोड़ी लोन लेंगे, तो थोड़ा इंटरनल और थोड़ा लोन से, इस तरह से हम प्लान करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अपना पैसा डालेंगे तो भी सब्सिडी मिलने वाला है। Thank you, sir. Sir, since that was the last question, would you like to give any closing comments? Thank you very much, all the shareholders, to believe in your company, and thank you very much, Vinay ji, Mohsin bhai, to arranging the highest number of people in this meeting. I think this is also a record break, like MacPower result, that we have more than 135 people in this meeting. I think this time we break this number of people's record also. So congratulate Team Captify, and thank you very much once again, everyone. Thank you, sir. Thank you to the management team, and thank you to all the participants for joining on this call. This brings us to the end of this conference call. Thank you.